Hello guys, this is a video of a standard 10th state board lesson 1. Topics covered in this video are vocabulary and from grammar le passé composé है. Subscribe for more videos, share the videos with your friends. यार उनका भी भला करो थोड़ा. तो गाइज जो टॉपिक्स बचेगी ना वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइज इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ चैप्टर हम सबसे पहले उसकी वोकैब करेंगे, फिर उसका ग्रामर पार्ट देख लेंगे, फिर ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ द चैप्टर और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज. सो नाउ लेट्स गो टू द वोकैब पार्ट. ओके, सो गाइज हम सबसे पहले वोकैब इसलिए कर ले क्योंकि जब हम पहले वोकैब करते हैं ना तो हम उस चैप्टर के सारे वर्ड्स से फेमिलियर हो जाता है. ओके गाइज, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप ये वोकैब के वर्ड्स एक बार देख के लिखो और एक बार बिना देख के लिखो, ठीक है. तो इससे आपको हर एक वर्ड दिमाग में बैठ जाएगा. और लिखते वक्त ये भी आपको याद रखना है कि वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन. मैस्कुलाइन के लिए UN और फेमिनाइन के लिए UNE युन. ये बिना देख के लिखते वक्त भी लिखना है आपको, ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. सी यू सून, एब बेटॉइट, ऑन टाइम, एलोयूड, इनसाइड, एलो इंटीरियर, अबे, आबे. याद रखो मैस्कुलाइन है, ठीक है. एक्टर, एक्टर, टू एडमायर, एडमायरर, थिंग्स, affairs, age, age, pleasant, agreeable, to light, allumere, to arrive, arrivere, to water, adoucere, lift, essential, seated in a circle, assist around, to attract, attire, before, ever, to want, to desire, avoir, envy, the, to chat, bavadra, to drink, boire, drink, mosa, gift, kada, coffee, cafe, cafe, camp, camp, youth camp, camp the Juins, postcard, carte postale, ash, sondre, ashtray, cendrière, room, bedroom, chambre, field, camp, hat, chapeau, to search, to look for, chercher, sidder, sidder, to know, connaître, to cut, couper, to create, créer. Culture, culture, waste, rubbish, refuse, déchets, delicious, delicieux, file, dossier, to last, durer, water, you, writer, écrivain, to remove, to take off, enlever, to enter, entrer, to explore, explorer, to make, to fabricate, fabriquer, tiring, fatigant, favorite, favori, camp, fire, feather camp, flower, fleur, football, foot, smoke, fume, to keep, garda, astronomy, astronomy, history, history, island, ill, there is, there are, ago, ilya, to throw, jeter, young, June, young people, Junes, youth, Junes. अच्छा, जो पहले वाला था ना वो मैस्कुलाइन प्योरल के लिए था और जो अब वाला है ना वो फेमिनाइन के लिए है, ठीक है. देखो यहाँ पे F मतलब फेमिनाइन, M मतलब मैस्कुलाइन. आई होप सो आपको ये पहले से पता ही होगा. डे, जूर्नी, लेक, लाक, मिल्क, लेट, द नेक्स्ट डे, लेंडेमें, टू रीड, लीड, डॉक्टर, मेडिसिन, टू पुट, मेट्रेड, मोनोटोनियस, मोनोटोनी, टू डाई, मुडीर, to swim, neger, to be born, netra,
novel news, novel, offer, offered, signboard, pennow, packet, packet, paradise, paradise, perfect, perfect, word, parole, part, party, landscape, paysage, painter, painter, painting, pentur, sparkling bubbly, peloton, pioneer, pioneer, to picnic, picnic, picturesque, picturesque, dish, flat, full, play, to whip, pleasure, rain, pluie, to pollute, polluted, apple, poem, to be able, can, power, clean, proper, to reserve, reservoir, to return, returned, meeting, reunion, salty, savory, sail, alone, only, seul, century, ciel, to go out, to leave, sorted, picture, painting, tableau, cup, taste, to fall, tombre, tourist, tourist, at once, tooth the sweet, work, travel, sad, trist, typical, typically, holiday maker, vacancier, cow, wash, suitcase, wells, vegetation, vegetation, truth, verith, toward, about, verse, life, we, to see, word, to wish, to want, वॉलॉर्ड। तो गाइस यहाँ पे अपना वोकैब ख़त्म होता है। शायद हर एक वर्ड का परफेक्ट ट्रांसलेशन फ्रेंच के वे में नहीं होगा। अगर आपको परफेक्ट चाहिए, एकदम परफेक्ट, तो आप गूगल पे जाके एक बार देख सकते हो। तो गाइस अब हम लोग पासे कंपोजे करते हैं, ओके। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप ये सब बाय हार्ट लर्न कर लो, ठीक है, विथ मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, ओके। अच्छा तो गाइस स्टार्ट करते हैं। लो पासे कंपोजर। अब पासे कंपोजर क्यों यूज़ होता है? पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए। अब इंग्लिश में कैसे पास्ट टेंस होता है, वैसे फ्रेंच में पासे कंपोजर होता है, ठीक है। अब ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ वो सेम आपका टेक्स्ट बुक का ही है, वर्ड टू वर्ड, ऐसा कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, ठीक है। द पासे कंपोजर इज यूज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट एक्शन दैट हैज़ टेकन इन द पास्ट। अब आपने अवार से तो पढ़ा ही है, अब ये देख लो। इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सिलरीज, अवार और एत्र। अवार से तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब हम यहाँ पे अवर रिवाइज कर देंगे और एत्र भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो टू फॉर्म द पास्ट टेंस यू नीड वन ऑफ द ऑक्सिलरीज एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड्स। अवर या तो एत्र इन द प्रेजेंट टेंस प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ये आपको पता ही है, आपने अवर से पहले भी कर चुके हो। अब ये देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर रेगुलर ई आर एंडिंग्स, आई आर एंडिंग, ई आर, आई आर और आर ई एंडिंग्स। आपको पता ही होगा ई आर, आई आर और आर ई एंडिंग्स क्या है, और आपको याद भी होंगे वो। आई होप सो, आप 10th के बच्चे, आपको आना ही चाहिए। अब ई आर के जगह पे क्या यूज़ करने का? ई के ऊपर एक्यूट, ठीक है। तो पार्लेड, पार्लेड ई आर एंडिंग है, ई आर के जगह पे क्या डाल देंगे? ई एक्यूट। एग्जाम्पल देखो, जाय, जे एपोस्ट्रॉफ क्यों आया है? क्योंकि वॉवेल है ए, ओके। पाल्य, अब ए आई देखो, अवर का प्रेजेंट टेंस, और पाल्य ये पास्ट पार्टिसिपल बराबर, और प्रोफेसर मतलब आई स्पोक टू द टीचर। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई आर एंडिंग चेंज किस में होगा? आई में। अब देखो, फिनीड एंडिंग में क्या है? आई आर, वो चेंज किस में होगा? आई में। एग्जाम्पल देखो उसका, इल अ फिनी देज द वाज। ए अपना अवार का प्रेजेंट टेंस और फिनी पास्ट पार्टिसिपल। आपको ऐसे हर एक वर्ब जो इरेगुलर होगा ना, वो तो आपको हर एक पढ़ना ही पड़ेगा। जो रेगुलर है उसमें आपको ये सीक्वेंस यूज करना है, ठीक है। इल अ फिनी देज द वर्ड, मतलब ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब नेक्स्ट देखो, आर ई एंडिंग, आर ई के जगह पे
यू आएगा, सॉरी यहाँ पे ना आर ही आएगा, मैंने गलती से ई आर लिख दिया है, तो आर ई के जगह पे क्या आएगा, यू। नूज आवॉन्स पद्यु नौत्र शायद। अब आवॉन्स अपना अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस हो गया और पद्यु अपना पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसका मीनिंग है वी लॉस्ट अ कैट। We have already known how the passive composer is formed with a word. A quick revision, take the verb regarder. Past participle regarde. अब er ending है तो er के जगह पे क्या आएगा, e acute, बराबर। अब अफर्मेटिव में देखते हैं, जाए regarde, ये आपने पहले से ही पढ़ चुका है, अब इसका रिविजन चालू है, ठीक है। ये ए आई क्या आ गया, अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस और रेगार्ड दे। फिर त्यू आ रेगार्ड दे, अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। इल्ला रेगार्ड दे, अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। एल अ रेगार्ड दे, अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। नूज आवॉन्स रेगार्ड दे, अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस आवॉन्स और रेगार्ड दे वापस पास्ट पार्टिसिपल। वूज आवेज रेगार्ड दे, अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। इल्स ऑन्त रेगार्ड दे, अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। एल्स ऑन्त रेगार्ड दे, अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आई वॉच्ड, यू वॉच्ड, ही वॉच्ड, शी वॉच्ड, वी वॉच्ड, यू वॉच्ड, दे वॉच्ड। अब हम नेगेटिव देखते हैं इसका। नेगेटिव क्या होता है, न बिफोर द वर्ब एंड पा आफ्टर द वर्ब। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक है अव्वाड़ का प्रेजेंट टेंस और एक है पास्ट पार्टिसिपल। तो हम जो न पा वो अव्वाड़ के इसमें लगाएंगे, न बिफोर द अव्वाड़ वर्ब एंड पा आफ्टर द अव्वाड़ वर्ब, बराबर। एन अपोस्ट्रोफ, क्योंकि यहाँ पे ए आई में वॉवेल है, ए स्टार्टिंग में वॉवेल होता है तो एन अपोस्ट्रोफ करता है, आपको पता ही होगा। अब वैसे ही न बिफोर द वर्ब पा आफ्टर द वर्ब, किसके आगे पीछे, अव्वाड़ के आगे पीछे, ठीक है। जो न्यायपा रेगार्डे, त्यू न आपा रेगार्डे, इल नयापा रेगार्डे, एल नयापा रेगार्डे, नूज न आवॉन्स पा रेगार्डे, वूज न आवेस पा रेगार्डे, इल्स न सौंत पा रेगार्डे, एल्स न सौंत पा रेगार्डे। देखो हर जगह पे न और पा इसके आगे पीछे, किसके, अव्वाड़। ये याद रखना, आप एग्जाम में हमेशा बच्चे लोग इसमें ही मिस्टेक करते हैं, हमेशा याद रखना, न और पा बिफोर एत्र और अव्वाड़ बिफोर एंड आफ्टर, पास्ट पार्टिसिपल को टच नहीं करना, ठीक है। अब इस सब का मीनिंग क्या होगा, आई डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच, ही डिड नॉट वॉच्ड, शी डिड नॉट वॉच्ड, वी डिड नॉट वॉच्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। ऐसा को जाय लगा दे। अब आपको पता होगा इंटरोगेटिव बनाने के दो वेज है, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन और जो अपना वर्ब है उन दोनों को इंटरचेंज करके बीच में हाइफन डाल के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क, या तो सिंपल ऐसा का आगे डाल देने का और फिर पूरा सेंटेंस लिखने का। तो जो फर्स्ट है ना वो उन्होंने ऐसा का करके बताया, और जो आगे है वो हाइफन और सब्जेक्ट प्रोनाउन को इंटरचेंज करके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाए। अब यहाँ पे भी आपको क्या याद रखना है कि हमें अव्वाड़ के साथ ही इंटरचेंज करना है सब्जेक्ट प्रोनाउन को, जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको टच नहीं करना, ठीक है। अब फर्स्ट वाले ऐसा को के साथ किया है, ऐसा को फिर सेम सेंटेंस जाए रेगार्ड दे, बराबर। सेकंड क्या किया है, और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। सेकंड में क्या किया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और अव्वाड़ को इंटरचेंज किया और बीच में हाइफन लगाया, आत्यु रेगार्ड दे, इल आतिल रेगार्ड दे। अब आप सोचोगे ये टी कहाँ से आया, आपको पता ही होगा शायद तक। तो अगर दो वॉवेल एक दूसरे को बाजू बाजू में आते हैं तो फिर टी लगाते हैं। अब देखो ए और आई, अगर टी नहीं होता तो बीच में दोनों बाजू बाजू में आ जाते हैं, इसके लिए उन्होंने बीच में टी लगाया है, ठीक है। ये टी लगाना भी मत भूलना, ओके। सेकंड में भी देखो सेम है, इन दोनों में आपको याद रखना है बीच में टी आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉवेल क्रैश नहीं हो रहे, बाजू बाजू में नहीं है, तो टी नहीं आएगा, ठीक है। और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क, नूज सॉरी आवॉन्स नूज रेगार्डे, आवेज वूज रेगार्डे, ऑन्त इल्स रेगार्डे, ऑन्त इल्स रेगार्डे। आई होप आपको ये भी समझा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। However, each irregular verb has a different past participle. You need to remember then, here are a few of them. मैंने आपको बोला, अब ये देखो
ई आर एंडिंग, आई आर एंडिंग और आर ई एंडिंग का तो हम लोग ने देख लिया पास्ट पार्टिसिपल कैसे आएगा। पर अब ये जो है नाम क्या, अब ये जो है जो इररेगुलर वर्ब्स है उसके हर एक के पास्ट पार्टिसिपल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आलेड के जगह पे आले, ई के ऊपर एक्यूट, पार्तिर पार्ती, एक्रील एक्रीत, फेर फेत, दीर दीत, रीढ़ री, मित्र मिस, पौंद्र प्रौद्र प्रीस, बॉल बू, पवाड़ पू, वाड़ वू, वोलाड़ वोलू, सावाड़ सू, कौनेत्र कौनू। ये कुछ ही एग्जाम्पल्स है, आपको ऐसे बहुत सारे याद रखना है। मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अगर आपको ये करना है तो ये भी कर लो, प्रॉफिट मेरा हो गया, सच्ची बता रही हूँ। और ये सब जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ आप अपने ग्रामर की बुक में लिखो। ये अक्का ल पासे कंपोज आपकी ग्रामर के बुक में अपने हैंड राइटिंग में जब आप लिखोगे ना तो आपको एक बार दिमाग में भी बैठ जाएगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो अब ये भी देख लो, सम एक्स्ट्रा वर्ब्स विद देयर पास्ट पार्टिसिपल्स, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ साथ में, ये मैंने खुद से दी है, ठीक है। अव्वार के जगह पे ईयू लिखने का, मैंने आपको बाजू में मीनिंग भी बताया उसका। टू हैव, बेत्र बातू, टू फाइट, बवार बू, टू ड्रिंक, कनेत्र कौनू, टू नो, कुड़ीर कुड़ू, टू रन, क्रूरीर क्रू, टू बिलीव, कुद्र कुसु, टू स्यू, दवार ड्यू ड्यूटी, फालोड फालू, टू बी नेसेसरी, लीड लू, टू राइट टू रीड, पाड़ेत्र पाड़ू, टू अपीयर, प्लेड प्लू, टू प्लीज, प्लेद्र प्लेद पिटी, प्लावर प्लू, टू रेन, पावर पू, टू रेन। सॉरी गाइज, यहाँ पे टू रेन नहीं आएगा, टू बी एबल टू आएगा, ठीक है, वो गलती से मैंने ये लिख दिया है। पावर का मतलब है टू बी एबल टू, सॉरी। अब 16 देखते हैं, रिसर्वॉर रेक्यू, टू रिसीव, सावार सू, टू नो, सतेर टू, टू कीप, तेनीर तेनु, टू होल्ड, वेनीर वेनु, टू कम, वालोर वालू, टू बी गुड, विव्र वेकू, टू लिव, वॉलोर वॉलू, टू विश आएगा यहाँ पे, सॉरी, और टू वॉन्ट, रीड री, टू लाफ, सुइव्र सुइवी, टू फॉलो, dormir dormi, टू स्लीप, conduit टू ड्राइव, क्रेंथ to be afraid of, ecrit to write, ethinth to extinguish, fair to do। देखो ई गया है, उवरीर उव्रत टू ओपन, मूरीर मॉर्थ टू डाई, प्लॉन्द्र प्लेंथ पिटी, एत्र एते टू बी, नेगर नेज टू स्नो, नेत्र ने टू बॉर्न, सासवार असीस टू सिट डाउन, मैत्र मिस टू पुट, प्रौंद्र प्रीस टू टेक, वार वू टू सी। तो यहाँ पे अपना वर्ड का रिविजन खत्म हुआ है और ये कुछ इरेगुलर वर्ब्स के मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल बता दिए और रेगुलर के भी बता दिए, आपको ये सब याद रखने हैं। अब हम इत्र करते हैं, इत्र में से पासे कंपोजिट कैसे बनाने का वो देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू वर्ब्स कॉन्जुगेट विद इत्र। सर्टेन वर्ब्स यूज इत्र इंस्टेड ऑफ अवर इन द फॉर्मेशन ऑफ पासे कंपोजिट। टेक द वर्ब आरीवेयर, पास्ट पार्टिसिपल आरीवेयर। मैंने पहले ही बोला था ई आर के जगह पे क्या आएगा, ई आर एंडिंग में ई एक्यूट, बराबर। अब ये याद रखो, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। व्हेन वी यूज a word auxiliary, the past participle does not agrees with number and gender of the object। a word auxiliary मैंने आपको पहले बता दिया है, जो past participle था वो हर एक इसमें सेम ही रहता था, बराबर, उसमें कुछ चेंज नहीं होता था। it does not agrees with number and gender, okay, but when we use itra auxiliary it does agree with number and gender of the object। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फीमेल है या मेल है,
सिंगुलर है या प्योरल है, उससे उसके हिसाब से जो अपना ऑक्सिलरी पास्ट पार्टिसिपल है वो भी चेंज होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी तो समझेगा, वेट। अब ये देखो, जसवी आरिव है, ई क्यों डाला है? अगर आप फीमेल होगे तो आप ई डालोगे। इट अग्रीज विद द जेंडर, ओके। त्यू ए आरिव है, आप अगर फेमिनाइन जो इंसान है अगर वो लड़की होगी या फेमिनाइन होगी तो आप ई डालोगे, ठीक है। ओके, जो स्वी आरिव है, स्वी क्या हो गया अपना एत्र, और आरिव अपना क्या हो गया पास्ट पार्टिसिपल। और अब आपको याद रखना है एत्र है तो क्या होगा, इट विल अग्री विथ नंबर एंड जेंडर, ओके। एल ए आरिव है, मैस्कुलाइन है तो वैसे ही रहेगा। एल ए आरिव है, फेमिनाइन है तो एक्स्ट्रा ई ऐड करोगे। आपको एथ में और एथ में ही पढ़ा दिया होगा कि फेमिनाइन कैसे बनाने का, प्योरल कैसे बनाने का। आई होप आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नूजॉम्स आरिवेज, ई एस क्यू ऐड किया है, वी है ना। नूज मतलब क्या होता है, वी मतलब प्योरल फॉर्म बराबर, इसके लिए ई एस। फेमिनाइन होंगे तो ई एस, और अगर मेस्कुलाइन होगा और प्योरल तो ओनली एस। अब वी है तो प्योरल तो होगा ही, है ना। वो जेत आरिवे, जेत अपना वापस ये हो गया इत्र, और आरिवे पास्ट पार्टिसिपल, ये अकॉर्डिंगली डाल देने का, ठीक है। इल्संत आरिवेज, संत एत्र और आरिवेज अपना पास्ट पार्टिसिपल, एल्स सौंत आरिवेज। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा तो वापस देखो, आपको वापस समझ जाएगा, ठीक है। और अगर तो भी नहीं समझा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे करते हैं, न बिफोर द वर्ब पा आफ्टर द वर्ब। अब इसमें भी क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल को टच नहीं करना, पास्ट पार्टिसिपल वैसे ही रहेगा, बस वो उसका अपना फोड़ देगा, क्या है जेंडर और प्योरल। नेगेटिव के वक्त उसको टच करना ही नहीं है, न बिफोर द एत्र और आफ्टर द एत्र। जो न स्वी पा आरिव है, अब यहाँ पे क्या था, जो स्वी आरिव है तो न और पा कहाँ पे लगेगा, बिफोर एंड आफ्टर एत्र, ठीक है। बस न और पा हर जगह लगाते रहना है। और अगर वॉवेल से स्टार्ट होगा तो एन एपोस्ट्रोफ। और ये तो आपको अफर्मेटिव में मैंने बता दिया कि कैसे होता है बराबर। ये एंडिंग का ई कब आएगा, ई एस कब आएगा, ई फॉर फेमिनाइन और ई एस फॉर फेमिनाइन प्योरल, और सिर्फ एस फॉर प्योरल। देखो अब मैस्कुलाइन होगा, ठीक है, तो सिर्फ ऐसा आएगा। और इल्स मतलब दे बट फॉर मैस्कुलाइन फॉर्म, और एल्स मतलब दे पर फॉर फेमिनाइन प्योरल फॉर्म, तो ई एस आएगा, ठीक है। और न पा कब लगाना है, एत्र के ही आगे पीछे। ये देखो एत्र, एत्र के आगे पीछे, समझ गया, एत्र के आगे पीछे, ठीक है। ये जो अपना ये है पीछे का पास्ट पार्टिसिपल, उसको टच नहीं करना है, उसको सिर्फ नंबर और जेंडर के लिए देखना है, ठीक है। जो न स्वीपा आरिवे, तू न एपा आरिवे, इल न एपा आरिवे, एल न एपा आरिवे, नू न जॉम्स पा आरिवेस, वूज न जेत पा आरिवेस, एल्स न सौंत पा आरिवेस, एल्स न सौंत पा आरिवेस। अब उसका इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव दो वे से होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक ऐसा को और दूसरा सब्जेक्ट प्रोनाउन, और अपना जो ऑक्सिलरी है उन दोनों की जगह को इंटरचेंज करके बीच में हाइफन लगा के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क, बराबर आपको इंटरोगेटिव एनीवेज आता ही होगा, ठीक है। अब फर्स्ट उन्होंने ऐसा को करके बताया, ऐसा को जो है वो लिख देने का और पूरा स्टेटमेंट एज इट इज, ठीक है। ये वापस वही कॉन्सेप्ट ई एस, इट अग्रीज विथ नंबर एंड जेंडर, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लगाने का, ठीक है। फेमिनाइन अगर मैं लड़की हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, जोसवी आरिवे विथ ई, और अगर आप लड़के हो तो आप ई नहीं लगाओगे, है ना। आई होप आपको पता ही होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। एत्यू आरिवे, क्या किया, सब्जेक्ट प्रोनाउन और जो एत्र ऑक्सिलरी है सिर्फ उन दोनों की जगह को इंटरचेंज करके बीच में हाइफन लगा के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क, जो अपना ये है पास्ट पार्टिसिपल, उसको टच नहीं करना है, उसको सिर्फ देख लेने का है जेंडर और प्योरल है कि नहीं, ठीक है। सेम है, एस इल आरिवे, ए एल आरिवे, जोम स्नूज आरिवेज, जेट वूज आरिवे, सॉन्त इल्स आरिवेज, सॉन्त एल्स आरिवेज। आई होप आपको ये भी समझ गया होगा।
Do you see a difference? Do you see what happens to the past participle when the verb is conjugated with etra? वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी. The past participle agrees with the subject in number and in gender when the verb is conjugated with etra. वही जो मैंने आपको बताया. ठीक है. अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा कि एत्र कब यूज़ करना है और अव्वार्ड कब यूज़ करना है. अब आपको समझ गया कि एत्र में कैसे करना है, अव्वार्ड में कैसे करना है. पर कब एत्र को यूज़ करना है और कब अवार्ड को यूज़ करना है, उसके लिए दो ट्रिक है. डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प और एडवांट. अब जो एडवांट है ना वो आपकी टेक्स्ट बुक में है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ये जो डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प है ना वो ईजी है पर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. पर ये ज़्यादा ईजी होगा आपको समझने के लिए, तो मैं आपको पहले ये मेथड दिखा दूँ फिर मैं आपको वो मेथड भी दिखा दूँगी. ठीक है. ओके. तो ये जो रेड से लिखा है ना वो डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प है. देखो DR डॉक्टर MRS, मिसेस वेंडर VAN वेंडर DRE वेंडर, ट्रैम्प TRAMPP. ठीक है. डबल P है, बस इतना याद रखना है. और आपको और एक चीज़ याद रखनी है. अब देखो यहाँ पे ना देखो 2 बार आ रहा है बराबर. वैसे कुछ कुछ लेटर्स 2 बार होंगे तो कब कौन सा है वो आपको याद रखना है. अब देखो ये जो डॉक्टर मिसेस का ये जो है ना उसमें इत्र भी यूज हो सकता है और अवार्ड भी यूज हो सकता है. डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. अब डी से देसौंद्र टू डिसेंड. वो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कब इत्र यूज करना है कब अवार्ड यूज करना है. ठीक है. ये स्टार्टिंग है, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा पर आपको आगे जाके खुद से समझ जाएगा कि इत्र यूज करना है कि अवार्ड यूज करना है. और इसका मैं आपको एंडिंग में एक टिप दिखाऊंगी कि इत्र आएगा कि अवार्ड आएगा वो कैसे पहचानने का. फॉर दिस. ठीक है. ओके. R returnal to return. M Montel to climb. R rentrel to come home. S sortil to exit. अब वॉन्द्र में ना ओनली एत्र है. अगर वॉन्द्र में से मतलब वेनीर आया या आलेड वर्ब आया तो हम क्या यूज़ करेंगे, इत्र यूज़ करेंगे एज पास्ट पार्टिसिपल. पर अगर इनमें से कुछ आया तो हमको सोचना पड़ेगा इत्र आएगा कि अव्वार्ड आएगा. ठीक है. और अगर ये डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प को छोड़ के दूसरा कोई भी वर्ब आएगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो अव्वार्ड के साथ ही कॉन्जुगेट होगा. ठीक है. V venil to come. A alel to go. N netra to be born. D davanir become. E entrel to enter. R ravanil to come back. अब आपको ये याद रखना है कौन से आड़ में कौन सा वर्ब है. अब देखो यहाँ पे रवनीर है. ठीक है. पर यहाँ पे भी आड़ है, इसके लिए रतुलनेड है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा जरा सा प्लेसमेंट कि कौन से लेटर के लिए कौन सा वर्ब है. ठीक है. हाँ. ट्रैम्प ये भी ओनली इत्र मतलब ये आपको पास्ट पार्टिसिपल के लिए है या चेंज करने को तो इत्र के साथ ही कॉन्जुगेट होगा. इत्र ही उसका ऑक्सिलरी होगा. ठीक है. T for tomber to fall. R for restel to stay. A for arrival to arrive. M for muril to die. P for partil to leave. और P for parcel to pass. आप जब इसकी एक्सरसाइज करोगे ना, जब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. और ये सब जो मैं आपको सिखा रही हूँ अब भी पूरा पासे कंपोज आप अपनी बुक में लिख रहे हो. ठीक है. और ये अभी कभी याद कर लो ट्रैम्प में कौन से वर्ब है, उसका मीनिंग क्या है, हर एक चीज़ अभी के अभी मेरे साथ पढ़ लो. ठीक है. तो आपको बहुत ईजी जाएगा 10th. मेरे को बिलीव करो और मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते रहो. ठीक है. अब तो आपका टेक्स्ट बुक का मेथड देखते हैं एक बार. ठीक है. मैंने बोला था मैं दोनों मेथड से सिखाऊंगी. वो वाला मेथड मैंने आपको बता दिया है कब इत्र आएगा कब अव्वार्ड आएगा. अब ये वाले मेथड से भी बता देती हूँ. नाउ हियर्स अ लिस्ट ऑफ verbs which will conjugate with etra. अब देखो advent की तरह यहाँ पे ADVENT advent. और ये जो है ना उसके सामने लिखा हुआ वो ऑपोजिट्स है. देखो ऑपोजिट्स है ये सब. A for arrival, उसका ऑपोजिट क्या होगा, पार्थिल. arrival मतलब टू अराइव, पार्थिल मतलब टू लीव. descendre उसका ऑपोजिट क्या होगा, monted. descendre मतलब टू डिसेंड और monted मतलब टू क्लाइम. venir मतलब
और ये जो ब्रैकेट में दिया है ना वो उसका पास्ट पार्टिसिपल है, आपको याद रखने को उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है ना हर एक वक्त। ये तो अपना वर्ब है, उसका पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे जब हम लोग पास्ट कंपोजर बनाएंगे, बराबर। तो वेनिल का वेनु, आलेड उसका ऑपोजिट, वेनिल मतलब टू कम, आलेड मतलब टू गो, ऑन्ट्रेल मतलब टू एंटर, सॉर्टिल मतलब टू लीव, नेत्र मतलब टू बी बॉर्न और मूडिन मतलब टू डाई। और ये जो तीन है ना ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, ये तीन एक दूसरे के ऑपोजिट्स नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। टी से तोम्ब्र ये दोनों आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। रेस्टेल और लेतुर्नेल वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। अ स्मॉल क्लू, इफ़ यू स्पेल द कलर्ड लेटर्स यू गेट द वर्ड एडवांट, वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। एन ईजी वे टू रिमेंबर द वर्ड्स। Another small clue, the verbs in the column on the right are the opposite of the ones on the left, except the last three written horizontally. Except these three, these are all opposites of each other. ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ आपको यहाँ पे जो याद रखनी है, the verbs along with their prefix re और de are also conjugated with etra. अब रवनीर है मतलब टू कम बैक, हम लोग ने वनीर देखा था, उसके आगे आड़ी लगा दिया तो जो आड़ी और डी से वर्ब जो स्टार्ट होता है ना, प्रीफिक्स जिसका आड़ी और डी होगा ना वो भी एत्र से ही कॉन्जुगेट होंगे, और बाकी मोस्ट प्रोबेबली वर्ड्स अवार्ड से कॉन्जुगेट होंगे, इन सबको छोड़ के जो मैंने लिस्ट अभी बताई आपको, ठीक है। रेतंत्र भी एत्र से होगा और दवानील देखो डी है प्रीफिक्स में, वो भी एत्र से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं। जीन है देवेनु मेडिसिन, अब देखो देवेनु है मतलब देसौंद्र, बराबर, ये देखो देसौंद्र, देसौंद्र का क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, देवेनु, ओके, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, देवेनु। जीन मतलब एक लड़का है तो ई एड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा सब एक एक चीज़ आपको सोच सोच के करना है, ठीक है। आपकी जैसी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना इस टॉपिक पे, आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक। अब भी आपने फर्स्ट टाइम सीखा, इसके लिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा जबकि बहुत इजी है, ठीक है। जीन ए देवेन्यू मेडिसिन मतलब जीन हैज़ बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मारी ए रेवेन्यू ए 8 years, अब देखो रवनीर का है रेवेन्यू यू तक ही है, पर यहाँ पे हमने ई क्यों ऐड किया, क्योंकि मारी एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो मतलब मारी केम बैक एट 8 o'clock। अब नेक्स्ट देखो जोस्वी रंत्रे शेज मुआ आपड़े में स्कूज, अब ये जो ई है ये हम अपने वे से यूज़ करेंगे, अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं यूज़ करूँगी, अगर आप मेल हो तो आप यूज़ नहीं करोगे, बराबर। रॉन्ट्रेरिस टू रिटर्न होम, इसका मतलब है आई केम होम आफ्टर माई क्लासेस, ठीक है। ओके गाइस, तो अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर मैं आपको एक्स्ट्रा इसके लिए बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझेगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से हो जाएगा और आपको कभी कुछ डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो विथ प्रेपोजिशन हम हमेशा इत्र यूज़ करते हैं और विदाउट प्रेपोजिशन अवर यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। एंड व्हेन यू मूव योर होल बॉडी यू यूज़ इत्र, बट वेन यू मूव अ पार्ट ऑफ योर बॉडी यू यूज़ अवर, ठीक है। ये भी आपके ग्रामर की बुक में लिखते जाओ सब कुछ, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम लगेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। देसौंद्र का ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, देसौंद्यू। अब देखो जाय देसौंद्यू ल एस्केलेड मतलब आई वेंट डाउन द स्टेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया है, अवर्ड यूज़ किया है क्योंकि कुछ प्रपोजिशन वगैरह नहीं है। अब देखो जोस्वी देसौंद्यू पार ल एस्केलेड, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया है, ऑक्सिलरी एत्र यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना प्रपोजिशंस है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई वेंट डाउन बाई द स्टेयर्स, ठीक है। ये देखो मैंने आपको ये जो रूल में बताया वही है वो, ठीक है। अब
आपको ना, आप ये स्टेप्स से जब कुछ भी पासे कंपोजे में सॉल्व करोगे ना, और आपको पक्का फॉर श्योर पासे कंपोजे का 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड्स में पक्का आएगा। तो ये स्टेप्स से आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डिसाइड कर लो एत्रो ऑक्सिलरी होगा कि अवर्ड ऑक्सिलरी। उसके बाद डिसाइड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। उसका पास्ट पार्टिसिपल कैसे चेंज होगा, मतलब देसोंद्रो का कैसे देसोंद्यू हो जाएगा। वो जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी पहले, वो आपको लिस्ट लर्न करनी है ना। तो वो पास्ट पार्टिसिपल डिसाइड करो, ठीक है, कि उसकी स्पेलिंग कैसे आएगी। स्टॉप इफ अ वर्ड ऑक्सिलरी वाज यूज्ड। If एत्रो auxiliary was used, check the gender and number of the object and apply accordingly। जो मैंने आपको बताया कि अगर एत्रो होगा तो वो नंबर और जेंडर से चेंज होगा, है ना। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ। ये ना मैंने कुछ एग्जांपल आपके एक्सरसाइज के में से अब भी बता दी है कि आप जब प्रॉपर सॉल्व करने बैठो। अभी तो मैंने ये वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट सिखाया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगी, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर और वर्ब के 2 टॉपिक्स बाकी है, जेटेल वर्ब और लीड वर्ब शायद, एंड अपना पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना बाकी है। उसमें मैं आपको और डीप में सिखाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे देखो, अब इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ अपने को पास्ट पार्टिसिपल चेंज करके देना है। यहाँ पे डैश है तो लेकॉन्ट्रेल क्या क्या होगा, ई आर एंडिंग है तो क्या आएगा, ई अक्यूट बराबर, तो वही बस ई अक्यूट डाल दिया है, इजी है। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें कहाँ पे फिलअप है, हम लोग को ऑक्सिलरी डालना है कि कौन सा ऑक्सिलरी आएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल देखो पहले क्या है, वोयाज है। मतलब ये जो वोयाज है वो डॉक्टर मिसेस वेंडल ट्रम्प में आता है क्या, नहीं आता, मतलब अवर्ड ही यूज होगा, तो अवर्ड डाल दो, इजी। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको ऑक्सिलरी भी डालना है और पास्ट पार्टिसिपल भी डालना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑन्थ्राइल दे रखा है। ऑन्थ्राइल किस में आता है, डॉक्टर मिसेस वेंडल ट्रम्प में बराबर। उसमें किस में आता है, वेंडर्ड में आता है, VANDER बराबर। तो ई फॉर ऑन्थ्राइल, मतलब वो सिर्फ एत्रो के साथ जाता है, तो जर्सवी ऑन्थ्राइल। तो हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया कि बाय द स्टेप कि क्या आएगा, एत्रो ऑक्सिलरी आएगा, ठीक है। फिर ER एंडिंग है तो ER निकाल के ई अक्यूट। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल ठीक से समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे हैं तो आप बिंदास अपना कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड गाइज, हम जैसे जैसे इस टॉपिक के और क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ये टॉपिक उतनी ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और आपको ये सिंपल लगेगा, ठीक है। और मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ ना, आप भी वैसे वैसे पढ़ते जाओ, वो टॉपिक्स कवर करते जाओ, एंडिंग के लिए कुछ मत रखना, अभी ही सब कर लो मेरे साथ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड जो भी टॉपिक्स बचती है वो मैं दूसरे पार्ट्स में कवर करती जाऊंगी। और अगर गाइस आपको कुछ भी डाउट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट सॉल्व करने के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।